એક શિબિર થાય છે અને તે રમેશભાઈ પાટીલ અને એમણે ગુરુદેવ પાટી અમે બધા સાથે મળીને કરીએ છીએ અને આ શિબિરમાં આપ સૌને હું આવવા માટે આમંત્રણ આપું છું અને આપ સૌનું સહકારથી આ શિબિર સફળ થાય અને ગુરુદેવની શક્તિ અને કૃપા મળે તેવો અમને આશા મળે છે. 21મી તારીખ આવતા મહિનાની એટલે જે પ્રસાદી આપણી જોડીમાં અત્યારે છવાઈ રહેલી છે એમાંની એક આ વિશિષ્ટ પ્રસાદી આ ગુજરાતનો માહોલ જોઈને અથવા તો આપણું એનું વાતાવરણ જોઈને જે અનુકંપા થઈ રહેલી છે એ અનુકંપાને આપણે લાયક છીએ એવું પ્રતીત થઈ રહ્યું છે. પણ આ એક જે દિવ્ય વાતાવરણ અહીંયા નિર્માણ થયું છે અમની પાછળનું મને લાગે છે ગુરુજીનું કેટલું ચિંતન કેટલું સૂક્ષ્મ ચિંતન છે કે આ એક લહેર ઊભી છે આધ્યાત્મિક શાંતિની, આનંદની, વિશ્વાસની, સમર્પણની, ભક્તિની. એ લહેર એમને કેટલી ચિંતન છે એમનું કે એ લહેર ક્યાંક શમીને જાય, પાછા સંસારના વાતાવરણમાં અટવાઈ જઈને પાછા આવતીકાલથી એ જ આપણે આમ તેમ ફરતા થઈ જઈએ તો કદાચ આ જે દીપ પ્રગટાવેલો છે એ દીપ કદાચ પાછો ઝાંકો તો ન થાય, બુઝાવાનો તો નથી પણ ઝાંકો તો ન થાય. એક મા, બાપ, પિતા તરીકેની એમની જો આ ચિંતન છે એ એટલું હૃદયને સ્પર્શી જાય એવું છે. અને એ નિમિત્તે એમને અત્યારે ચાલે અમે વાત કરી, આ બંને ભાઈઓએ વાત કરી કે ગુરુજી ગુજરાતમાં એક બીજો પ્રોગ્રામ રાખીએ તો એમને કહ્યું કે રાખો. તરત જ એમને કહ્યું કે ગુજરાતમાં પ્રોગ્રામ માટે હું કદી પણ ના નથી પાડતો, કારણ કે એમને કદાચ એટેચમેન્ટ હશે, કદાચ આપણો પ્રેમ એમના ચરણમાં સુધી પહોંચવાની તૈયારીમાં હશે. પણ 21મી એપ્રિલ 21મી જાન્યુઆરી બિલ્લીમોરા નવસારીની પાસે વલસાડની નજીક એક બહુ સરસ રમણીય સ્થળ છે અને રેલવે સ્ટેશન પર જ આવેલું છે. ત્યાં એક રમણીય શિબિરનું આયોજન આપણે કરીશું અને એ આયોજન કોઈ રમેશભાઈ પાટીલ કે રમેશભાઈ માત્ર નથી કરવાના. એ શિબિરનું આયોજન આપણે બધાએ ભેગા મળીને કરવાનું છે. એ શિબિર ગુજરાતની હશે. એ શિબિર માત્ર બિલ્લીમોરાની ન હોય, માત્ર નવસારીના કે વલસાડના આયોજકો એ શિબિર નથી કરવાના. એ શિબિરની અંદર વડોદરા પણ એટલું જ ભાગીદાર હશે, સુરત પણ એટલું જ ભાગીદાર હશે, ભાવનગર, જામનગર. આ શિબિર માટે માત્ર આપણને 15-20 દિવસ મળ્યા હતા, જેથી જે કેટલાક ભાઈઓને દૂર સુધી આપણે ન મળી શક્યા હોય, જેથી એનો લાભ લઈ શક્યા નથી. મારી પાસે 2-3 પત્રો પણ આવ્યા અફસોસ માટેના કે ભાઈ અમને આ વસ્તુની જાણ બહુ મોડી થઈ એટલે અમે આવી શક્યા એમ નથી. પણ આ શિબિર માટે તો હવે આપણી પાસે પૂરતો સમય છે. એક ચેતનાની લહેર પ્રગટી છે, એક દીવો બરાબર અત્યારે સળગ્યો છે, પ્રગટ થયો છે, તો એને આપણે બુઝવા ન દઈએ, એને આપણે પ્રકાશિત બનાવીએ અને આપણા જે બીજા ગુરુ ભાઈઓ છે એને આ સંસ્કૃતિની જ્યોતની અંદર મિલાવી દઈએ. બસ આ જ એક ચિંતન કદાચ એમનું હશે કે જે ચિંતન ભાવિ પેઢીને જે ભવિષ્યને જોઈ શકે છે. આપણી સંસ્કૃતિને સાચવવા માટે એમના દિલમાં જે ભાવના છે, જે તરંગ છે, કદાચ ખાસ એ તરંગ, એ ભાવનાને આપણો એનો અંશ પણ જો આપણે સમજી શકીએ તો આપણે આપણું જીવનનું ઘણો બધો ભાગ આની પાછળ ખરીદી શકીએ એમ છીએ. હવે આ ઘડી આવી ગઈ છે. સિદ્ધાશ્રમ સાધક પરિવાર એની પત્રિકા, એ પત્રિકા તમે વાંચો, તમે જુઓ, જાણો. આ જ્ઞાન પત્રિકામાં આવતો કોઈ પણ લેખ, કોઈ ગ્રંથના સંદર્ભની અંદર તમને ક્યાંક પૂરેપૂરો નહીં મળે. એક ઋષિ પોતાનું ચિંતન વ્યક્ત કરે ત્યારે એ ઋષિ એટલે નવો રસ્તો પાડીને ચાલે, ચાલેલા રસ્તા પર ન ચાલે. એ કદી દોરાય નહીં, એ નવું ચિંતન, નવો જ રસ્તો બતાવે. આજ સુધી કોઈ નથી કર્યું તેવું કરે તે નામ ઋષિ. અને તમે પત્રિકાનો કોઈ પણ લેખ વાંચો, પત્રિકાનો કોઈ પણ પ્રયોગ તમે જુઓ, એનો સંદર્ભ અલબત્ત પુરાણ સાહિત્યમાં હશે જ્યાં આવૃત્ત છે, આપણે ખબર જ નથી, પણ એ પત્રિકા સંગ્રહણીય છે. મારી પાસે 1981 તમામ અંકો છે. જયારે આમ ખોલીને બેસું છું ત્યારે પણ એમ થાય છે કે કેટલું દુર્લભ જ્ઞાન છે આપણે. અને આ જ્ઞાન, આ ધરોહર, આ જરો જો આપણા સમાજની અંદર વહેતો રહે તો જરૂર આપણો સમાજ, ભારતીય સંસ્કૃતિનો ધ્વજ ભવિષ્યની અંદર જ્યાં આપણે પહોંચવા માટે ત્યાં પહોંચી શકીશું. પણ એના માટે આવી શિબિરો, આવું આયોજન, આવી ચેતના જરૂરી છે. અને એની અંદર વિદ્યમાન પ્રવર્ત સમયની અંદર આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. તો એવા વાતાવરણની અંદર આપણે આ શિબિર કરવાના છીએ. આપ સૌને એમના વતીથી, મારા વતીથી, આપ સૌના વતીથી જે કોઈ ભાઈ નથી આવી શક્યા તે તમામને હું આમંત્રણ આપું છું. અને આના કરતા 10 ગણી મોટી સંખ્યાની અંદર
આપને ત્યાં ઉપસ્થિત થઈએ અને આના કરતા પણ વિશિષ્ટ સારા પ્રયોગો માટે આપણે એમના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીશું. એ તો દયાળુ છે. કદાચ કોઈ વિશિષ્ટ ક્યારે શું પ્રદાન કરે એ નક્કી નથી, તો તે શિબિરની અંદર પણ આપણને આવી આપણા પર કૃપા કરે એવી એમના ચરણમાં હું પ્રાર્થના કરું છું. भूल नहीं सकते हैं। और अपने हमारे स्टाफ के नवसारी के जो हमारे टीम के सदस्य है भाई है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। वैसा ही उन्होंने ये काम देख के गुरुदेव ने वापस हमको आदेश दिया है और करना है। और आपके सब भाइयों की, गुरु भाई और बहनों की सबकी हमको सहायता मिले, ऐसा ही हम आप लोग से नम्र विनंती करता हूँ। और शिविर स्थल दिल्ली मोरा में शंकर जी का मंदिर का नक्की हुआ है, इतना बोल के हम आपकी सहायता। प्रारंभ करने से पहले 2-3 बातें मैं कह देना चाहता हूँ। एक तो यह कि आप में से सभी लगभग 30 वर्ष की उम्र से तो ज्यादा के होंगे ही होंगे, और मुझे उम्मीद है 30 वर्षों की उम्र में 30 मित्र तो तुम्हारे होंगे ही। एक साल में एक मित्र तो तुमने बनाया ही होगा पूरे 365 दिन में। उन 30 मित्रों में 10 मित्र तो तुम अपने साथ लेके जा सकते हो बिल्डिंग वगैरह, इसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं। इतने लोग 10-10 मित्रों को भी अपने साथ लेके जाएंगे तो एहसास मुझे हो जाएगा तुम सही अर्थों में शिष्य हो, तुम्हें क्षमता है, तुम शेर हो और तुम्हें अपने आप में विश्वास है। और ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम खुद अपनी गणित कॉपी में तुम परीक्षा दे देना, खुद ही पास हो जाना, फेल हो जाना। मैं परीक्षा दूंगा, मैं इम्तिहान लूंगा, मैं परीक्षा में करूंगा। तुमको सोचना है तुम क्या हो और कैसे हो। इसलिए प्रत्येक शिष्य का एक धर्म कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ 30 साल में 30 मित्र भी आप नहीं बना सके तो फिर तुम्हारा जीवन ही बेकार है, फिर तो कोई अर्थ भी नहीं है। 30 में 10 तो तुम्हारे यहाँ बढ़ेंगे नहीं, यहाँ बढ़ेंगे तो मान करके ले जा सकते हो। दोस्त है, मित्र है, इसमें क्या बात होगी। मैं अगर तुम्हें ले जाना चाहूँ तो फिर ले जा ही सकता हूँ, फिर तुम्हें रोकता ही नहीं। एक बात तो इस प्रकार का चिंतन कि एक शेर था और शेरनी थी और उसके एक बच्चा था। कोई शिकारी पास में से निकला और जो शेर को मालूम पड़ा तो शेर भाग गया। शेर भाग गया तो शेर ने अपने बेटे छोटे उस लड़के की जो पैदा ही हुआ था शेर, उसके मुंह में बेचारी खड़ी रही। उधर शिकारी की गोली चली, शेरनी मर गई। मरते मरते भी अपने पुत्र को बचाने के लिए 40, 50, 100, 200 फुट भागी और गिर गई, समाप्त हो गई। शिकारी जीप में गया, शेरनी को लादा और स्थान पे चला गया। वो शेरनी का बच्चा वहीं पड़ा रहा जो 2 घंटे पहले पैदा हुआ था। थोड़े समय बाद जो गीदड़ होते हैं, गीदड़ों के बेटे बहुत ज्यादा होते हैं, 10-15 होते हैं। शेर के तो एक ही जिंदगी में एक शेर ने एक बच्चा पैदा करती है सिर्फ, आपको ऐसा मालूम नहीं होगा। शेर ने पूरी जिंदगी में एक बार केवल एक शेर पैदा करता है, इसलिए वो राजा कहलाता है। और गीदड़ और पूरी जिंदगी में 40 और 60 बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए वो सियारी कहलाता है, गिदड़ी कहलाता है। वो पास में से गीदड़ और गीदड़ी की पत्नी और 5-7 बच्चे और हाँ वो करके निकल रहे थे। बच्चा देखा, स्त्री अपने आप में कोमल होती है, नाजुक होती है, बेचारी पुत्र के प्रति प्रेम होता है, खुद के पुत्र के प्रति भी। और कोई पुत्र कोई लड़का तकलीफ पाता है तो उसकी आंखें से चलाती है। गिदड़ी ने सोचा कि ये लड़का अकेला पड़ा है, उसने उसको भी साथ ले लिया और अपना दूध उसको पिला दिया। तो अब इस झुंड में शामिल हो गया, शेर का बच्चा गीदड़ के झुंड में शामिल हो गया, चलते हो गए। साल भर में गीदड़ तो 2.5 फुट का ही रहा, वो शेर 4 फुट का एकदम कतला और जवान टाइप निकला, बिल्कुल शेर बच्चा तो शेर का ही था। 1.5 साल का और 2 साल का शेर का बच्चा पूरा जवान हो जाता है और इतनी हिम्मत होती है कि एकदम हाथी के ऊपर छलांग लगा कर हाथी के दिमाग को फाड़ देता है, मस्तिष्क को फाड़ देता है, हाथी को नीचे गिरा देता है। तो 2 साल का कत्तावर जवान शेर हुआ तो उसकी हाइट, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी चलने की क्षमता उन गीदड़ों से बिल्कुल अलग हट करके थी।
गीदड़ को थोड़ी सी आवाज आती है, छुप करके कहीं अंदर में झाड़ी में छुप जाते हैं। शेर डट के खड़ा रहता है। वो गीदड़ कहता है तू मर जाएगा, ऊपर का पट्टा समझता नहीं है, तो इधर मुझे पास बैठ जा चुपचाप, अभी शिकारी पास में निकल रहा है, तुम ऐसा मत कर। तो शेर मगर फिर भी वो हुआ ही करता था बेचारा, उसको और दहाड़ देखी आवाज आती नहीं थी। एक शेर पास में से निकला और जो ही उसने गर्जना की तो सब सियार भागे, वो भी भागे। तो शेर ने सोचा कि ये जो 3 फुट का एकदम से 4 फुट का है, ये गीदड़ तो नहीं है, ये इनके साथ क्यों भाग रहा है, क्या बात, ये कुछ और बात, ये भागा तो जरूर है, तो गिदड़ नहीं है ये शेर, मैं भागा सियारों के साथ में। उस शेर ने जोरों से ओंकार करके उस झाड़ी के ऊपर झपट्टा मारा और शेर को पकड़ लिया। गिदड़ तो भाग, गिदड़ भी भाग गई, उनके साथ बच्चे थे वो भी भागे। वो 2 साल का जवान सत्तावर, उसने पूछा तुम कौन? तुम सियार। और तुम सियार नहीं, तुम तो शेर हो। शेर कहां से? मेरी माँ सियार नहीं है, मेरा बाप सियार है, मेरे भाई सियार है, मेरी बहन सियार है, मैं सियार ही हूं। तो तुम बोलो तो सही। हुआ आता था, हुआ बोलो। और तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अपने बारे में ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम शेर के बेटे हो। ये सामने हाथी खड़ा है, एक छलांग लगा, शेर के माथा फोड़ दे हाथी से, तुम्हारा हाथ में ताकत है, और उसका सिर फोड़ करके नीचे गिरा दे। मैं बताता हूं तुम्हें, कूद यहां से। और उस शेर का बच्चा कूदा और हाथी के दिमाग को फाड़ करके नीचे गिरा दिया। उसने कहा तुम शेर थे और शेर हो, तुम्हें मालूम नहीं, और मैं भी तुम्हें कहता हूं तुम शेर हो और सियारों के घर में जन्म ले लिया है, तुम पता नहीं, मैं तुम्हें शेर बना रहा हूं, हिम्मत है। अब उसके बाद भी तुम हुआ करते रहो, तो मैं क्या, मुझे मालूम मैं शेर हूं, मालूम है तुम मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो, तुम्हें चुन करके निकाला है। अब उसके बाद में हुआ करते रहे तो फिर मेरा तो कोई दोष है नहीं, तुम हाथी के दिमाग को विलीन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिल्ली मुर्द एक छोटी सी जगह है, 10,000 शिविर कर सकते हो, 10,000 कार्य कर सकते हो। शेर अपने आप में अलग रास्ता चुनता है, अपना अलग उसकी ओंकार होती है, अलग बातचीत होती है, अलग क्षमता होती है। इसलिए आप लोगों को मैं पहचानता हूं, जैसे वो शेर उसको पहचानता था, मैं भी आप लोगों को पहचानता हूं। गलती से तुम गलत जगह जन्म ले लिया है, गलत जगह वातावरण हुआ है, वो वातावरण तुम्हें कह रहा है बाहर निकलना मत, गोली चल जाएगी, कोई शेर तुम्हें मार देगा, तुम ऐसा कुछ मत करना कि झाड़ी में छुप कर बैठा रहना। कोई शेर मार के चला जाए किसी को, तो उसका मांस लाके मैं तुम्हें दूंगा, तुम खा लेना, और कुछ करना मत, और तुम चुपचाप झाड़ी में छुप के बैठे हुए। पहली बात मैं एहसास दिला रहा हूं, तुम मेरे बेटे हो, मेरे पुत्र हो, शेर हो, और अपने ओंकार अपनी गर्जना से तुम एहसास करा सको तुम शेर हो। और मरो तो शेर की तरह मरो, गिदड़ों की तरह मत मरो। चलो तो शेर की तरह चलो, 2 मिनट जियो चाहे 2 घंटे जियो, 2 घंटे भी शानदार तरीके से जियो। वैसा 50 साल जिंदा क्या रहना जो दुख दुख करके जलती रहती है, न लकड़ी जलती है, न चिंगारी पैदा करती है, न रोशनी पैदा करती है। वैसे लकड़ी की तरह जलने से कोई फायदा भी नहीं। एक क्षण के लिए बबक करके जलो, चाहे एक क्षण के लिए भी रोशनी होगी, मगर रोशनी तो होगी, रोशनी के लिए तुम उस संतान, वैसे संतान, वैसे गुरु के शिष्य हो, वैसे तुम हृदय में गुरु को स्थापन किया है, ऐसा तुम्हें सहयोग देना है। उनका कोई ड्यूटी नहीं है, वह तो आगे बढ़ करके मुझे अभी बातचीत कर रहे थे, मैं तो यही तो बात माइक में बोल देना, मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं। मगर उन्होंने जब ये कहा कि आप लोग सहयोग दें और हाथ जोड़ रहा था, मैं उनका हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हाथ तो तुम्हें जोड़ना चाहिए, उनका तुम्हें बननी चाहिए कि हम सब साथ में हैं, तुम आगे बढ़ो। हम एक एक करके 5-5 लेके आएंगे, ताकत के साथ आएंगे, बता देंगे गुरु जी को कि हम क्या हैं, कैसे हैं, ये आपको बताना चाहेंगे। और मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लो, जब तुम नहीं 2 साल तुम नहीं पहचाना उसने, तो वो बेचारा हुआ करता ही रहा। जिस दिन उसको सदगुरु मिला, उसने बताया कि तुम ज्ञान दिया, तुम क्या हो, कहां भटक रहे हो, क्यों झाड़ी में छुप रहे हो, क्या होगा उससे? या तो आगे तुझे मार देगा तो मर जाना, या फिर हाथों को नीचे गिरा दे, दार लगा उछल कूद। एक हिम्मत, एक ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।
ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।